ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2016 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸਮ ਕੀ ਹੈ 36 ਦਾ 36 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ 70 ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 40%, ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਇਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ 70 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 70 ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈ 40%। ਠੀਕ ਹੈ, 70 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ 40% ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 14 ਆਏਗਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ 14 2 ज़ा 28। ਬਟ ਦੇਖੋ ਕਿ 70 ਨੰਬਰ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 40%। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 70 ਦਾ 40% ਨਿਕਾਲਿਆ, 28 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 70 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ 28, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 98। तो 36 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? B। ਨੈਕਸਟ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਇਨ ਵਿਚ ਅ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇਟਸੈਲਫ ਵੈਨ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੀਂਗ 5% ਇਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਇਨ ਵਿਚ ਅ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ। ਵੈਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ 5%। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਲੈਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ, ਮਤਲਬ 3P। ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਇਨ ਵਿਚ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇਟਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਪਲੱਸ P। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? A ਮਾਈਨਸ P। ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3P, ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ P, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2P। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ट्रिपल है 3P हो गई, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ 2P ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ P ਇੰਟੂ R ਇੰਟੂ T ਓਵਰ 100। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 5% ਇੰਟੂ 5, ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੋ ਗਿਵਨ, ਓਵਰ 100। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2P, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20, ਮਤਲਬ 2P ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਇੰਟੂ T ਓਵਰ 20 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ P ਨਾਲ P ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, 20 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 40 ਇਕੁਅਲ ਟੂ T। तो टाइम कितना अपने को आ गया 40 आ जाएगा। तो यदा ऑप्शन डी की हो गया अपने को आंसर हो गया। पहला प्रिंसीपल लिखा, फिर अमाउंट, सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मूला A माइनस P लगाया, फिर सिंपल इंटरस्ट का दूसरा फॉर्मूला जो कि कॉमन है P इंटू R इंटू T लगा के आप T निकाल लेते। नेक्स्ट 38 सम, 2 persons कंटेस्टेड एन इलैक्शन ऑफ पार्लीमेंट। 2 पर्सन है जेडे कि इलैक्शंस विच खड़े हैं। ठीक है, द विनिंग कैंडीडेट जोड़ा विनिंग है जिन्हें जितया हुआ उन्हें सिक्योर्ड किया हुआ 57% ऑफ द टोटल वैलिड वोट पोल्ड एंड वॉन बाय मेजोरिटी दिस वोट्स। ठीक है, 57% उन्हें जितियाँ जिन्हें इन्नियां वोटां ने जित लिया वै, तो आप टोटल वोटां दसनिया किन्नियां वै। हुण देखो आप लैट कर लीए, लैट टोटल वोट्स आप लैट कर लिया कि टोटल वोट्स किन्नियां है X है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ केस अगर देखिए, हम देखो टोटल किन्नियां जित्तियां ने 57, आप लिख लिए विनिंग वाले ने किन्नियां कीतियां वे विनिंग वोट्स माइनस। हम देखो ये तो विनिंग है, जेड़ा जित्या वा उन्हें इन्नियां वोटां जित्तियां वे। ठीक है, जे 57% इन्ने जित्तियां वे तो पिछे किन्नियां बच गई? टोटल 100 है ना, 100 चो 57 कट दो। नैक्सट अपने को अदर देख लिए, अदर वोट्स किन्नियां वे 57 उन्हें जित लिया, तो अदर किन्नियां आ गई 43 आ गई। ठीक है, हुण जिहड़ा 57 है टोटल वोट्स है ना, 57% ऑफ X निकाल लो, बाकी जिहड़ियां बच गई उन्हां दा भी
43% ऑफ टोटल वोट्स निकाल लिया। 57 माइनस 43 कितना आ गया 14% ऑफ एक्स इक्वल टू किन्नियां वोट्स नाल जित्तिया हो 42,000। आप 42,000 वोटा लिख लिए। क्लीयर है। पहले आप विनिंग वोट्स लिख लिया, ठीक है। जे इन्नियां जित्तियां वै तो दूजे बंदे कोल किन्नियां गईयां वो भी लिख लिया, उन्होंने माइनस करके कितना गा 14% ऑफ एक्स। तो ये हुण आपां की करांगे एक्स की वैल्यू निकाल लीए। टोटल वोट्स किद्दां निकल आएंगे 42,000 इंटू 14/100 है, इधर आके की हो जाएगा 100/14। तो कैंसल कर देंगे, कैंसल करके किन्नियां आ गई अपने को इन्नियां वोट्स अपने को की आ जाएगा आंसर 3 लाख वोट्स। किन्नियां सी टोटल वोट्स किन्नियां वे 3 लाख। ओके, सब तो पहला विनिंग उन्होंने माइनस किया, फिर 42,000 टोटल वोट्स से सॉल्व करके अपने को किन्नी आ गया 3 लैक्स। तो किन्नी ऑप्शन आ गई अपने को 1s 10s 100,000 10,000 लाख। ए 38 का किन्ना ऑप्शन आ जाएगा 38 का ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। नाउ 39 क्वेश्चन। डिविडेंड ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 250 शेयर ऑफ ₹50 ईच। टोटल 250 शेयर है, ठीक है। एक शेयर का 50 रुपीज़ है। इफ़ द हाफ ईयरली डिविडेंड इज़ 4%, अगर हाफ ईयरली डिविडेंड 4% है ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ किन्नी होएगी, ठीक है। हुण देखो कि 250 शेयर है टोटल, तो एक शेयर किन्ने दा 50 का। सब तो पहला मैं लिख लवां कि हाफ ईयरली 1 शेयर किन्ने दा वै 50 रुपीज़ का। 50 का मैं की निकालना पहला 1 शेयर 50 रुपीज़ का, मतलब मैं इतने 50 का 4% निकालना, क्योंकि हाफ ईयरली डिविडेंड इज़ 4%। निकाल के कितना आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है। अगर हाफ ईयरली 1 शेयर 2 रुपीज़ है तो फुल ईयर की अगर मैं गल करा, हाफ ईयर 6 मंथ होंगे, फुल दे 12 होंगे। अगर हाफ 2 का वै तो फुल ईयर किन्ने का होएगा 2 × 2 4 का होएगा, ठीक है। हुण आपां ईयरली आपां देख लीए, इत्थे ईयरली किन्ने दे होणगे, टोटल किन्ने शेयर है 250 शेयर है। तो एंड ते आपां की करांगे 250/4 कर देंगे, किन्ना आ गया 1000। तो अपना आंसर किन्ना आ गया 1000 रुपीज़। 250 शेयर ईयरली किन्ने दे आएंगे 1000, ठीक है। डिविडेंड ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर दिते उन्हें हाफ ईयरली सी, ठीक है। आप पहला हाफ ईयरली का फुल ईयर बनाया, फिर बाद चो आप दसिया कि 250 जो शेयर है फुल ईयरली किन्ने दे आएंगे 1000 रुपीज़ दे आएंगे। क्लीयर है। पहला हाफ ईयरली का 4% निकाल लिया, फिर उन्होंने फुल ईयरली किया, फिर फुल ईयरली करके उन्होंने 250 ना मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। ₹8,000 is lent at 5% compound interest for 2 years. The compound interest is, हुण आपां नूं इहदे च की है कि प्रिंसीपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है। हुण आपां इहदे च की पहला निकाल लिए अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला कितना हुंदा अपने कोल P × 1 + R/100 इंटू सॉरी पावर कितनी है T। P कितना है 8,000, 1 प्लस रेट कितना है 5/100, टाइम कितना सी 2 ईयर, ठीक है। इन्हों कैंसल कर दिए तो ये आ जाएगा 8,000 × 21 × 21/20। कैंसल कर दिए 0 ना 0 0 ना 0 कैंसल 40, फिर इन्हू कैंसल किया कितना आ गया 20 × 21 × 21। तो कितना अपने को सॉल्व करके इनू आ जाएगा 8820। ये अपने को की आ गई अमाउंट आ गई। अमाउंट कितनी आ गई 8820। आप फाइंड की करिए कंपाउंड इंटरस्ट। कंपाउंड इंटरस्ट होंदा है अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। अमाउंट अपने को 8820 माइनस प्रिंसीपल कितना है 8,000, तो इन्हों माइनस करके कितना आ गया 820। कंपाउंड इंटरस्ट कितना आ गया अपने को ₹820। ऑप्शन सी इज़ आंसर। क्लियर है। अमाउंट का फॉर्मूला लगाता, अमाउंट का फॉर्मूला लगा के अपने को जो वैल्यू आ गई, ठीक है 8820 वैल्यू आ गई, उतों आप किया कंपाउंड इंटरस्ट। अमाउंट इसने निकाली क्योंकि अपने कंपाउंड इंटरस्ट निकालने के लिए अमाउंट मस्ट है। अमाउंट माइनस प्रिंसीपल, अमाउंट जो प्रिंसीपल माइनस करके 820 कंपाउंड इंटरस्ट आ गया। क्लियर। नाउ 41 क्वेश्चन।
41 क्वेश्चन की है द फ्लोर ऑफ रूम इज़ 25 मीटर लॉन्ग 16 मीटर वाइड। ओके, फ्लोर ऑफ अ रूम ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੌਂਗ ਇੰਨਾ ਵਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਾਈ 10। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੋਰ ਰੂਮ ਮੀਟਰ 'ਚ ਵਾ, ਬ੍ਰਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਫਲੋਰ ਦਾ ਰੂਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਰੂਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫਲੋਰ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਫਲੋਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਫਲੋਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਡਥ ਔਰ ਹਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਸੌਰੀ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25, ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 16, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 400 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕ 20 ਇੰਟੂ 10 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ 100 ਇੰਟੂ 100। 2 ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ 2 ਟਾਈਮ 100 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 00 ਨਾਲ 00 ਕੈਂਸਲ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.02 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫਲੋਰ ਵੀ ਮੀਟਰ 'ਚ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਤੇ 400 0.02 ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆ, 0 ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ 100 ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, 2 2 ज़ा 4 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਗਿਆ 20,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਨੀਡ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲਣਾ ਫਲੋਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲਿਆ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20,000, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨਾਓ 42 ਸਮ। A box 1 meter long, 50 centimeter broad, 25 centimeter high, filled with packet each 5 centimeter, 4 centimeter, 2 centimeter. The number of packet in the box. तो बॉक्स विच किन्ने पैकेट है हम देखो ये भी सेम है 1 मीटर है, आ सारे सेंटीमीटर दिते हुए। सब तो पहला तो आप मीटर नू सेंटीमीटर बना लिया। अपन पता है कि जो 1 मीटर है वो सेंटीमीटर बन जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने को 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर की हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर च हो गए। हुण आपां की करना है दोवां दा वॉल्यूम। जदों भी किसी चीज़ की कैपेसिटी बारे गल कीती होवे, ठीक है, तो उहदे च हमेशा वॉल्यूम ही लगदा है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स तो डिवाइड करांगे किंदे नाल वॉल्यूम ऑफ पैकेट्स। क्लीयर है। की करना नंबर ऑफ पैकेट अगर दसने आपां तो आपां वॉल्यूम निकालना बॉक्स का भी तो वॉल्यूम ही पैकेट का। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की वैल्यू की आ जाएगी अपने को लेंथ ब्रैथ और हाइट। लेंथ कितनी है 100 इंटू ब्रैथ कितनी है 50, हाइट कितनी है 25 ओवर वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितना आएगा 5 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। हुण इन्हां दोवां नूं जो आपां सॉल्व करांगे इन्हां नूं सॉल्व करके कितना आ जाएगा इनू कैंसल करांगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 25,000 ऊपर आ गया, नीचे कितना आ गया 8 आ गया। तो इन्हों जो आप हम सॉल्व कर लिए 2 के टेबल पर सॉल्व करके देख लिए पहला 2 के टेबल पर कितना आएगा 2 1 ज़ा 2 1 2 5 डबल 0 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 इन्ना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इनू आपस में कैंसल करांगे 4 3 आ जाएगा 1 2 5 तो कितना आंसर आ गया 3125 आंसर आ जाएगा। तो यदा ऑप्शन कितना आ गया सी आ गया। क्लीयर है। नंबर ऑफ पैकेट निकालने सी आपां की कीता दोवां दा वॉल्यूम निकाल लिया, बॉक्स का वॉल्यूम पैकेट का वॉल्यूम निकाल के दोवां नूं आपस च की करता दोवां दा वॉल्यूम निकाल के उन्होंने आपस में डिवाइड करके आंसर कितना आ गया 3125।
43 क्वेश्चन, अ रिक्टेंगल फील्ड, एक रिक्टेंगल फील्ड है जोड़ा कि इन्ना लॉन्ग है, वह एरिया 4840 है। क्लीयर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मतलब जिमें मान लो आ चीज़ दिता हुआ रिक्टेंगल दिता हुआ, ठीक है, वो बाहर वाली जी साइड, आउटसाइड, ठीक है, फेंसिंग फील्ड ऑफ 4 साइड्स, इफ 1 मंथ ऑफ फेंसिंग कॉस्ट इज 10, सॉरी 1 मीटर की अगर 10 रुपीज़ है तो अगों आप फाइंड करना वा, दैन टोटल किन्ने रुपीज़ बनते हैं। सब तो पहला तो आप लिख लिए कि एरिया ऑफ रिक्टेंगल, एरिया ऑफ रिक्टेंगल, अपने को स्टेटमेंट है ना, तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल अपन कितना पता ही है कितना होंदा, लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो वैसे एरिया ऑफ रिक्टेंगल स्टेटमेंट च कितना दिता हुआ 4840 इन्ना दिता हुआ है, और अपन होर ओहदे नाल की दिती है लेंथ गिवन है, जिहड़ियां चीज़ां गिवन होंदियां उन्होंने स्टार्टिंग च लिख लो। एरिया कितना 4840 और लेंथ एक दिती है 242 इंटू 4840, अगर लेंथ की वैल्यू 242 है इंटू ब्रेडथ, एरिया 4840, ये मैं ब्रेडथ की वैल्यूज फाइंड कर सकती हाँ किदा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड इनू कैंसल करके मेरे को ब्रेडथ की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। हुणे तुहानूं दस्सिया है कि उन्हें बाहर वाली साइड की गल की है, जो इदा सिर्फ बाहर वाली साइड की गल हो रही है फेंसिंग एरिया आ जाए तो उदों आप लगाने पैरीमीटर, तो पैरीमीटर का फॉर्मूला लगाना वै, तो हुण इत्थे रिक्टेंगल का पैरीमीटर कितना होंदा वै 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेडथ, 2 इंटू लेंथ अपन पहला ही गिवन सी 242, ब्रेडथ आप हुण फाइंड की है कितनी है 20 है, तो इनू सॉल्व करके 524 आ गया, तो इन्ना मीटर आ गया। अगर उन्हें कहा सीगा कि जी 1 मीटर 10 रुपीज़ लग रहा वै तो 524 मीटर किन्ने रुपीज़ लगेगा, इनू 10 मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को आ जाएगा 5240। क्लीयर है। 1 मीटर अपने को 10 सीगा तो 524 मीटर कितना होएगा, तो उन्होंने 10 मल्टीप्लाई करके 5240, डी ऑप्शन आंसर। क्लीयर है। नाउ 44th क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करना है, इसका आंसर ए आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना, सेम ही है, ज़्यादा है नहीं। नैक्सट आप 45 क्वेश्चन पर आ जाइए। 45th क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेडथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ भी गिवन है, ब्रेडथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, रिस्पैक्टिवली इट्स सरफेस एरिया इन स्क्वेयर सेंटीमीटर। ईजी है, देखो की गल की है, क्यूबॉइड की फाइंड की करना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होंदा है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट एल, एल बी एच एल भी गिवन है, बी भी गिवन है और एच भी गिवन है। सारिया वैल्यूज़ में सिंपली बस पुट ही करना है। एल 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 15, 2 मल्टीप्लाई हम 15 इंटू 8 करा कि आता वै 120, 48 तो 90, इन्होंने सारे ऐड करके 2 ना मल्टीप्लाई करके अपने को कितना आ जाएगा 516। सिंपल सीगा, इहदा तो सिर्फ आप क्यूबॉइड का फॉर्मूला ही लगाया वै, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा के बस वैल्यूज़ गिवन सी पुट करके आंसर कितना आ गया 516 आ गया। नैक्सट, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 9 सेंटीमीटर, कहते एक स्फीयर है वह रेडियस आपको कितना दिता है 9 सेंटीमीटर गिवन है। इट इज़ मैल्टड एंड ड्रॉन इंटू वायर डायमीटर 2 mm, कहते इन्हू मैल्ट करके एक वायर बनाती जिसका डायमीटर 2 mm है। द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर इज़, mm है बट उन्होंने आप मीटर के फाइंड करना। सब तो पहले 2 mm है, ठीक है, 2 mm जो मीटर के कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा 0.1 मीटर। क्लीयर है। सब तो पहले तुम इनू डायामीटर कन्वर्ट कर लिया, वैसे 0.2 आना सीगा बट डायामीटर है रेडियस बनाने लिए आप इनू बाई 2 करता, ठीक है, कैंसल करके 0.1 आ गया। वैसे कितना आना सी 2 mm अपने को 0.2 मीटर आना सी, बट डायामीटर है रेडियस करने के लिए आप 2 नाल डिवाइड करता, अपने को कितना आ गया 0.1 मीटर आ गया। क्लीयर है। हम सब तो पहला आप रेडियस ऑफ स्फीयर, एक तो अपने को स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, दूसरा अपने को स्फीयर के नाल सिलेंडर, क्योंकि जी वायर होंगी है राउंड शेप च होंगी है कि सिलेंडरिकल शेप राउंड च होंगी है, इस करके सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। क्लीयर है।
देखो रेडियस कितने गया, रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 9 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲੀ ਵਾਇਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਆਣਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h, पाई ਨਾਲ पाई कैंसल 4/3 r, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਵੇ 9 ਕਿਊਬ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਾਲੀ r ਆਪਾਂ 0.1 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਵੈਸੇ 0.2 ਸੀਗੀ बट इनू आप रेडियस करने के लिए 2 नाल डिवाइड किया तो अपने को 0.1 बन गई, तो अपने को 0.1 स्क्वेयर इंटू आप फाइंड की करनी है लेंथ, मतलब एच आप फाइंड करनी है। ठीक है, हुण इन्हूं आप सॉल्व कर लाँगे। जो 4/3 9 क्यूब इनू सारे जो तुसीं सॉल्व कर लोगे, एच निकालनी आप 4/3 9 का क्यूब हुंदा वा 729, इनू तुसीं करोगे आ जाएगा 100/1 कैंसल किया 2 4 3। ठीक है, इनू सारे सॉल्व करके अपने को आ गया 97200, इन्नी अपने को की आ गई हाइट आ गई, बट ये अपने को सेंटीमीटर च आ गई सी, तो इन्हें मीटर च करने अपने को आंसर कितना आएगा 972। 972 ऑप्शन गिवन हैगी है डी ऑप्शन। क्लीयर है, सब तो पहला मिलीमीटर नूं आपां ਉਹਦੇ 'ਚ कन्वर्ट किया, सॉरी सेंटीमीटर च कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर च कन्वर्ट करके फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोवां नूं इक्वल रख के सॉल्व करके लेंथ निकाल ली। क्लीयर है, दोवां दे एक किन्नवा क्वेश्चन सीगा अपने को 46। ठीक, नैक्सट अपने को 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन की है अपने को, द बेस एंड हाइट 3:4, द एरिया इज़ 150 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इट्स हाइट ऑन। क्लीयर, हुण अपने को उन्हें बेस भी दिता हुआ, हाइट भी दी है, ठीक है, एरिया भी देता उन्हें ट्राईएंगल 150। लिख लो, आप फाइंड की करनी है, इहदी हाइट सेंटीमीटर च निकालनी है। सब तो पहला मैं बेस लिख लें 3 है, हाइट कितनी है 4 है, जो रेशो च वैल्यू होवे नाल वेरीएबल लग जाता, जी आप एक्स लगा लिए 3x तो 4x, होर अपने को एरिया दिता है, मतलब एरिया ऑफ ट्राईएंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राईएंगल कितना होता 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राईएंगल गिवन सीगा कितना 150, 1/2 बेस कितना है 3x, हाइट कितनी सी 4x, कैंसल करके 2x आ गया, कितनी आ गई 6x इक्वल टू 150, तो x कितनी आ जाएगी 150/6, कैंसल करके 150/6 कैंसल आउट करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 3 के टेबल 3 2 ज़ा 6, 50 कैंसल करके कितना आ गया अपने को 25। हुण x इत्थे भी सी, x इधर भी सी, जिहदे करके एक बन गई सी अपने को x दी स्क्वेयर, अपने को इधर भी x दी स्क्वेयर बन रही सी, x स्क्वेयर कितना आ गया 25। अगर वैल्यू स्क्वेयर च इधर आके स्क्वेयर रूट बन जाएगी तो कितना आ जाएगा अपने को 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। आप फाइंड की करनी है, हाइट फाइंड करनी है जो कि 4x सी, x की जगह 5 पुट कर दो तो कितना आ गया 20 आंसर आ गया, तो अपने को आंसर की आ जाएगा 20। ठीक है, बेस गिवन सी, हाइट गिवन सी, सिर्फ फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट, वैल्यूज पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, हाइट फाइंड करनी है, इस करके एक्स की जगह पे हाइट एक्स की वैल्यू पुट करके हाइट कितनी आ गई 20। क्लीयर है, 40 कितना सी 47 सम। नैक्सट अपने को सम है 48। The area of parallelogram whose base is 12 cm corresponding height is 45 cm in square meter। सिंपल ही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है लेंथ सॉरी बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है बेस इंटू हाइट, सिंपली जस्ट 45 नू 12 सॉरी बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 45, 12 तो 45 में मल्टीप्लाई करके 540 अपने को आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जस्ट फॉर्मूला लगाना है जो कि बेस इंटू हाइट है, दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया 540।
Next 49, area of trapezium with parallel side A and B having distance h between them is given by. area of trapezium ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। then area of trapezium ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 1/2 a plus b h। 49 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ b। area of trapezium ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/2 a plus b into h। ਅ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਕਸ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੈਂਥ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੈਂਥ L ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ B ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ H ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਲਸ ਆਫ ਥਿਕਨੈਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ X ਹੈ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਕਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਊਬੋਇਡ ਜਾਂ ਕਿਊਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ L into B into H। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਵਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡਤੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਐਕਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। L minus 2x, B minus 2x, H minus 2x। area of equilateral triangle of side in each is। area of equilateral triangle ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, then area of equilateral triangle ਹੁੰਦਾ ਵਾ √3/4a square। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ B ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਕੁਆਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। 52 question, the height of isosceles triangle with equal side x each base y is given by। isosceles triangle, isosceles triangle ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, isosceles triangle ਜਿਹਦੀਆਂ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ isosceles triangle A B C, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ, ਆਹ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਸੋਸੀਲਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਹੈ, ਬੇਸ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਬੇਸ y ਹੈ। ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਬੇਸ y ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਹਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆ ਵੀ y/2 ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ y/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋਸੀਲਸ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ x ਬਟ ਬੇਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ y ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਫ ਕਰਤਾ y/2 ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ABBCCA ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਉਠਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਾ ਹਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਨਿਕਾਲਣੀ। ਹਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ D ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਗਈ B D ਔਰ C। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y/2 ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਆ ਵਾਲੀ ਆ BC ਸਕੁਅਰ, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ BD ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ CD ਸਕੁਅਰ। BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਹੀ ਸੀ x ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y/2 ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y/2, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ x ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ 4 h ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੂੰਗੀ। ਐਲਸੀਐਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 4x ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 4। ਆ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 4x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 4। ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨੀਚੇ 4 ਹੈ, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ √4x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 2। C ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ।
सब तो पहला आइसोसेलेस ट्राईएंगल नू ड्रॉ किया, उनकी वैल्यूज़ लिखिया, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगाई, पाइथागोरस थ्योरम तेरे को वैल्यूज़ गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप एच की वैल्यू फाइंड की, जो आई है 4x² माइनस y² ओवर 2 आई है। क्लियर है। नेक्स्ट 53, in a cylinder if radius is halved and height is double the volume will be। कहते अगर सिलेंडर दी सिलेंडर है ਉਹਦਾ रेडियस हाफ हो, हाइट डबल हो, तो वॉल्यूम कितना आएगा, वो भी हाफ ही होएगा। सॉल्व करके देखना, हाफ ही आएगा। ठीक है। द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राईएंगल इज 8, हाइपोटेन्यूज दिस एरिया इज स्क्वायर मीटर। हम देखो बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, आप फाइंड की करना है परपेंडिकुलर, सेम वही फॉर्मूला पाइथागोरस लगानी है। ठीक है, वो साफ ही दिता है कि बेस अपने को 8 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो परपेंडिकुलर मतलब फाइंड कर लेना है। परपेंडिकुलर नू कुछ भी लिख सकते आप। ठीक है, परपेंडिकुलर नू पी ही रहन दो। तो अपन पता है कि अगो पाइथागोरस फॉर्मूला की होंदा है बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बेस 8² परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइट 10 64 प्लस पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 64 ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट कर दो तो 6 आ जाएगा। पी अपने को कितनी आ गई 6 आ गई, परपेंडिकुलर कितनी आ गई 6। पाइथागोरस लगा के परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइट भी आ गया। और फाइंड की करना है एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, ट्राईएंगल का एरिया, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राईएंगल कितना होंदा वा 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2, बेस कितना सी 8। ठीक है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर आप निकाल लिया कितना है 6, कैंसल करके कितना आ गया 24, ऑप्शन ए। ठीक है, बेस गिवन सी, हाइपोटेन्यूज गिवन सी, पाइथागोरस लगा के परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, उस बाद एरिया ऑफ ट्राईएंगल 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके अपने को 24 आंसर है। क्लियर। नाउ 55th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस्ड इन अ रूम, डायमेंशंस गिवन है 10 3 है कि 8 है, सॉरी 8/6। ਹੁਣ ਇੱਥੇ रूम की गल की है, रूम उन्होंने कहा है क्यूबॉइड शेप च भी हो सकता है। ठीक है, ਹੁਣ एक रूम है, इमेजिन करो कि रूम के इदा करके 2 रोड्स खड़ियाँ की हुई उन्होंने। ठीक है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, लंबिया रोड्स रूम के रखिया टेढ़िया ही आनगियाँ, लॉन्गेस्ट है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट अपने को रूम का डायमेंशनस गिवन है। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪਈਆਂ ਵੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਊਬॉइड ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ, ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਕਿਊਬॉइड, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड निकालने लिए उन्होंने फॉर्मूला होंदा वा स्क्वायर रूट a² प्लस b² प्लस c²। डायगनल ऑफ क्यूबॉइड a² प्लस b² प्लस c²। a कितनी है 10, b 8² c 6², कितना आ गया 100 प्लस 64 36, स्क्वायर रूट कितना आ गया सारे ऐड करके 200, तो जो सॉल्व करेंगे 10√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगा हुआ है कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस c², तीनों वैल्यू गिवन है, पुट करके अपने को आंसर आ गया। नेक्स्ट 56, अ मैन बोरोड 8,000 फ्रॉम अ मनी lender 146 days 5% अमाउंट वी विल हैव टू पे। सिंपल अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, देखो अपने को प्रिंसिपल गिवन है, डे टाइम गिवन है, रेट गिवन है, सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मूला लगा लिया क्योंकि अमाउंट फाइंड करने के लिए सिंपल इंटरस्ट पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरस्ट फॉर्मूला क्या होएगा प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम। टाइम देखो 146 डेज है। ठीक है, अगर डेज में दिता हुआ तेन पहले ईयरली बनाना पैना वै, तो अपन पता वै कि 1 ईयर के किन्ने डेज होंगे 365, इस करके इनू आप 365 नाल डिवाइड करांगे। और फॉर्मूले के 100 होंगे ही है, P इंटू R इंटू T ओवर 100, ये 365 है, जो डेज है उन्होंने ईयर बनाने किया।
तो जो इन्हों आप सारे सॉल्व करांगे अपने को सिंपल इंटरस्ट कितना आ जाएगा 160। फाइंड आप की करना वै अमाउंट का फॉर्मूला कि होंगे वै सिंपल इंटरस्ट प्लस प्रिंसीपल। सिंपल इंटरस्ट कितना आ गया 160, प्रिंसीपल कितना है 8000 तो इन्होंने ऐड करके कितना आ जाएगा 8160 आंसर। क्लीयर है। सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मूला लगा के सिंपल इंटरस्ट फाइंड किया क्योंकि अमाउंट लिए सिंपल इंटरस्ट चाहिए वै। सिंपल इंटरस्ट प्लस प्रिंसीपल करके अपने को वैल्यू कितनी आ गई 8160 बी ऑप्शन। क्लीयर। नाउ 57 सम 57 है अ मैन सेल्स एन आर्टिकल A man sells article 330 thereby gaining 10%। गेन मतलब प्रॉफिट 10% ਦਾ आर्टिकल ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ SP ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CP फाइंड करना है ना तो आप CP का फॉर्मूला लगा लो या SP का लगा लो। देखो SP का फॉर्मूला अपने को की होंगे वै 100 प्लस अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आएगा, अगर लॉस गिवन है तो लॉस का फॉर्मूला आएगा। ये सैलिंग प्राइस के नाल आपां नूं प्रॉफिट दिता होया सीगा सैलिंग प्राइस के नाल प्रॉफिट गिवन है इस करके प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया सैलिंग प्राइस के नाल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 इंटू CP फाइंड करनी CP। SP 330 है 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 10 बाय 100 ठीक है इंटू CP 330 जो इन्हों ऐड करा अपने को कितना आ जाएगा 110 ओवर 100 इंटू CP तो CP इधर ही रहती है इधर चल जाएगा 330 100 इंटू 110 तो कैंसल करके कितना आ गया 3 CP कितना आ गया 300। सिंपल ही कुछ नहीं किया SP गिवन सीगा प्रॉफिट नाल दिता सी इस करके SP दे नाल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाया तो CP उहदे चों फाइंड कर लिया तो CP कितना आ गया 300 आ गया। शॉर्ट्स विच सारे फॉर्मूलाज दे रील्स पाइया हुई हैं जिहड़े फॉर्मूलाज तुहानूं नहीं पता तुसीं शॉर्ट्स देखो उहदे च सारे फॉर्मूले हैगे आ ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58 the average mark of 32 boys is 60 and average mark 40 boys of class 10th B is 33। the average marks फाइंड करने आपां बहुत क्लासेस से ठीक है। सिंपली सब तो पहले आप 10th A क्लास लै लीए 10th A क्लास दे विच उन्होंने कहा है 32 बॉयज़ 32 बॉयज़ ऑफ क्लास इज 60 क्लास 32 बॉयज़ है मतलब 32 इंटू 60 तो 10th B विच किन्ने है 40 बॉयज़ है जिहदे च टोटल एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज़ ऑफ क्लास इज 33। इन्हों मल्टीप्लाई कर लिया 32 इंटू 60 कितना है 1920 तो 40 में 33 ना किया कितना है 1320 आ गया। 10th A 10th B हुण आपां की करना है ना टोटल मार्क्स निकाल लिए टोटल मार्क्स किन्ने हो जाएंगे टोटल मार्क्स होंगे इन्होंने दोवां नूं ऐड करके इन्होंने दोवां नूं ऐड करके अपने को आ गया 3240। सिंपली पहले 10th A की वैल्यू निकाली 10th B फिर टोटल निकालने लिए दोवां नूं ऐड करता अपने को तो ऐड करके कितना आ गया 3240 ठीक है। हुण टोटल बॉयज़ देखो किन्ने है टोटल बॉयज़ कितना वा इत्थे आ रहा ये 32 बॉयज़ इत्थे किन्ने है 40 बॉयज़ मतलब टोटल बॉयज़ किन्ने हो गए 32 प्लस 40 72 बॉयज़ हो गए। टोटल मार्क्स 3240 तो टोटल बॉयज़ किन्ने है 72 है तो एवरेज किन्नी आएगी टोटल ओवर 72 किन्ने है बॉयज़ है ठीक है। इन्होंने दोवां कैंसल कर दो तो आंसर आ जाएगा 45 आंसर मतलब एवरेज किन्नी आ जाएगी 45 आ जाएगी। पहला दोवें 10th भी तो टोटल मार्क्स निकाले टोटल बॉयज़ निकाले उन्होंने दोनों ऐड करके कैंसल आउट करके कितना आ गया 45 आ गया। 58 सम का आंसर 45। नाउ 59 सम 59 6 men can do a piece of work in 10 days 4 men will complete the same work in ईजी सीगा ठीक है। ये ट्रिक ही यूज़ कर लो मैन तो डेज इक्वल टू मतलब M1 D1 M2 D2 ठीक है। हुण ये सिर्फ यही ट्रिक लगा सकते हो अगर सिंपल तुहानूं सम दिता हुआ अगर 6 मैन इन्ने डेज च काम कर रहे हैं तो 4 मैन किन्ने डेज च काम करेंगे सिंपली आप डेज निकाल लेने 6 इंटू 10 एज इट इज़ 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा
कैंसल कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो की बच गया 3 × 5 इक्वल टू D2, 3 5 ज़ा 15, किन्ने डेज च काम करेगा 4, फोरमैन किन्ने डेज च काम करेंगे 15 डेज च। क्लीयर। अगर सिंपल सम दिता है दैन तुम सिंपल यह वाली ट्रिक भी लगा सकते हो, M1D1 मैन डेज, इधर मैन डेज गिवन सी, इधर मैन गिवन सी, डेज फाइंड आउट कर लेने, तो कितना आ गया 15 डेज, ऑप्शन ए 59 का आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन 59 डेज। क्लीयर है। नेक्स्ट 60, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इन। बहुत ईजी है, 50 स्टूडेंट टोटल किन्ने है 50 स्टूडेंट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ गर्ल्स है 40%, मतलब 50 चो मैं 40% निकाल दिनी हाँ क्योंकि वो गर्ल्स ने, 0 ना कैंसल, कितना आ गया 20 आ गया। 50 चो मैं 40% निकालता, कितना आ गया 20, मतलब 50 है टोटल है, 50 चो 20 किन्नी है गर्ल्स है, तो इन्होंने माइनस करके जिन्ना आएगा वो क्यों हो जाएंगे अपने को बॉयज़ आ जाएंगे, तो कितना आ गया 30। 50 का 40% निकालता, 20 आ गया, 50 चो 20 गर्ल्स चलिया गई, पीछे किन्ने बॉयज़ रह गए 30 बॉयज़, तो डी ऑप्शन आ गया। क्लीयर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2016 ਦੇ 2 ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਔਰ ਮੇਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ 2016 ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।